Good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter of prose named The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Students, we all have parents and grandparents, and we all have a few sweet memories of our childhood with our grandparents. Similarly, in this chapter, the writer shared his beautiful bonding with his grandmother. Let's start reading. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ दूसरों की तरह ही थी जो एक बूढ़ी औरत थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. राइटर कह रहा है कि वो 20 सालों से बूढ़ी थी. जब से मैं उन्हें जानता हूँ उनके चेहरे पे वैसे ही झुर्रियां थी. People said, लोग कहते थे, that she had once been young and pretty and had even had a husband. कह रहे हैं कि लोगों का कहना था कि वो कभी बहुत सुंदर थी और जब उनके हस्बैंड थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन मेरे लिए ये विश्वास करना मुश्किल. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे दादाजी की तस्वीर ड्राइंग रूम में एक स्टैचू के ऊपर टंगी हुई थी. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. वो बड़ी सी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी सफेद दाढ़ी उनके चेस्ट सीने तक आ रही थी और ऐसा लगता था जैसे कि वो 100 साल के बूढ़े हों. He did not look the sort of person who would have a wife or children. ऐसे उनकी तस्वीर को देख के ऐसा नहीं लगता था कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कभी पत्नी और बच्चे रहे होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. बस उनको देख के ऐसा ही लगता था कि उनके पोते पोतियां ही हैं और वो बहुत सारे पोते पोतियों के दादाजी हैं. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और यही कारण था कि मुझे विश्वास नहीं होता था कि मेरी दादी कभी जवान थी और सुंदर थी. ये विचार मेरे मन में द्वंद्व उत्पन्न करता था. She often told us of the games she used to play as a child. वो अक्सर मुझे बताती थी अपने बचपने में जो वो गेम खेलती थी. That seemed quite absorbed and undignified on her part, and we treated it like the fables and prophets she used to tell us. और वो उनको देख करके उनके योग्य नहीं लगता था. इसलिए वो स्टोरीज जो भी सुनाती थी अपने बचपन की वो हमारे लिए कहानियों की तरह होती थी. She had always been short and fat and slightly bent. वो हमेशा से छोटी थी, मोटी थी और थोड़ा सा झुकी हुई थी. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. और उनके चेहरे पे जगह जगह झुर्रियां पड़ी हुई थी. No, we were certain she had always been as we had. और हमको ऐसा लगता है कि वो हमेशा से ऐसी ही रही होंगी. Known her old. जब से हमने उन्हें जाना है इतनी ही बूढ़ी. So terribly old that she could not have grown older. और उतनी ही बूढ़ी, उससे ज्यादा वो बूढ़ी कभी नहीं हुई. And had stayed at the same age for 20 years. और 20 सालों से वही सेम एज पर वो रुकी हुई थी. She could never have been pretty. उससे ज्यादा वो पहले सुंदर हो सकती हैं, but she was always beautiful. लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting
on her waist to balance her stoop and the other telling beads of her rosary. वो अपने घर में रहती थी और एक हाथ उनकी कमर पर रहता था बैलेंस करने के लिए और दूसरे हाथ में वो मोती की माला जपने के लिए पकड़े रहती थी. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. उनके होठों पे हमेशा प्रेयर रहती थी और उनके चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशंस थे. Yes, she was beautiful. हाँ, वो सुंदर थी. She was like the winter landscape in the mountains. यहाँ पे कंपैरिजन किया है. उन्होंने बताया कि जैसे पहाड़ों पर मैदानी क्षेत्र होता है, घास वगैरह उगाती है, उसकी खूबसूरती का वर्णन किया है. उसी तरीके से वो भी सुंदर थी बुढ़ापे में भी. An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment, जिनके चेहरे पर हमेशा शांति और रिलैक्सेशन के भाव रहते थे. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. क्या बताया राइटर ने कि मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे. मेरे माता पिता मुझे उनके पास छोड़ गए जब वो शहर में रहने गए और हम लगातार साथ साथ थे. She used to wake up in the morning and get me ready for school. वो मुझे सुबह उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो अक्सर प्रेयर गुनगुनाती रहती थी. वो उसकी इंटेंशन या भावना ये होती थी कि उस प्रेयर को सुन करके मैं भी उसे याद कर लूंगा जब वो मुझे नहलाती थी मॉर्निंग में. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. मैं हमेशा उनकी इस प्रेयर को सुनता जरूर था लेकिन केवल इसलिए क्योंकि मुझे उनकी आवाज अच्छी लगती थी. मैंने कभी उसे याद करने की कोशिश नहीं की. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. वो मुझे लकड़ी की बनी हुई स्लेट देती थी जो कि चौक से साफ की जाती थी. या पहले गांवों में होता था कि वो प्लेट को वो लोग रंग करके वो करते थे, उस पे लिखते थे. A tiny earthen ink pot, छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट, एंड आ रेड पेन और लाल कलर का एक पेन. टाई देम ऑल इन बंडल एंड हैंड इट टू मी. एक साथ एक बंडल में बांध देती थी और मुझे पकड़ा देती थी. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्लेट चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. ब्रेकफास्ट के बाद, और ब्रेकफास्ट में राइटर बता रहा क्या था, एक चपाती रोटी होती थी मोटी सी जिसमें मक्खन लगा होता था और चीनी बिखरी हुई होती थी. वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे. शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स. और वो अपने साथ कई रोटियां ले जाती थी रास्ते में गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए. माई ग्रैंड मदर always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ में अटैच था या मंदिर के पास था. The priest taught us the alphabet and morning prayer. वहाँ के पुजारी हमें अल्फाबेट और सुबह की प्रेयर सिखाते थे. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. जब सारे बच्चे वरांदा में एक समूह में अल्फाबेट और प्रेयर को गाते थे, my grandmother sat inside reading the scriptures.
मेरी दादी वहीं पर बैठी और धार्मिक चीजों को पढ़ती रहती थी। When we had both finished, जब हम दोनों अपना अपनी डेली रूटीन खत्म करते थे, we would walk back together, और उसके बाद हम साथ साथ वापस आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, और यहाँ पर हमें गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वो हमारे पीछे पीछे आते थे हमारे घर तक, गुर्राते हुए, आपस में लड़ते हुए, जब हम रोटियां उनके पास फेंकते थे। Let's stop here. We will study about the turning point between writer and his grandmother in next video. Till then, keep learning and keep sharing.